فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب غور کرو، تھوڑی بات تمہیں میری لگے گی، اندر کی بات ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں اتنی رات تک بیٹھے ہیں، ان کمیٹی والوں کا بھی شکر رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے آج ہمیں پنڈال بنا بنایا ملتا ہے، کرسی رکھی ہوئی ملتی ہے، لیکن ذرا سی بات پر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن توجہ رکھنا، اب میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ آج یہ اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اصلاح معاشرہ و تحفظ ایمان کانفرنس، بولو لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہم لوگوں کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر جو بگاڑ ہو چکا ہے، جو خرابیاں ہو چکی ہیں، جو بیکار چیزیں آ گئی ہیں، جو غلط رسمیں آ گئی ہیں، غلط حرکتیں ہم کرنے لگے ہیں، ان سے ہم توبہ کر لیں، ان سے ہم باز آ جائیں، ان کو چھوڑ کر کے ہم ان کی اصلاح کر لیں، ان کو اچھا کر لیں، ان کو سدھار لیں، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اب اسی کے تعلق سے قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، بہت پہلے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، مگر آج پھر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا سن لو پیارے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہے، میرا مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہارے گھر والوں میں تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے گھر والوں میں تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے، لیکن میں انہی دو کو نشانہ بنا کے چلوں گا۔ ہمارے گھروں میں آج ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ہیں، ذرا توجہ رکھنا پیارے، یہ باپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مگر اتنا آزاد کر دیا ہے، بیٹوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، بیٹوں کو اتنا فری کر دیا ہے، اب چاہے تو وہ نشہ کرنے لگے، اب چاہے تو وہ شراب پینے لگے، اب چاہے تو وہ جوا کھیلنے لگے، اب چاہے تو وہ سٹا کھیلنے لگے، اب چاہے تو وہ کسی کی بہن بیٹی کو تکنے لگے، اب چاہے تو وہ محلے میں ڈاکہ ڈالنے لگے، چوری کرنے لگے، اس میں کھانے لگے، اور سگریٹ میں نشہ رکھ کر کے پینے لگے۔ ہماری قوم کے بچے آج نشے میں 25% عادی ہو گئے ہیں، یہ جھومتا ہوا چل رہا ہے، شراب کے نام پر بیئر پی رہا ہے، شراب کے نام پر بیئر کے نام پر شراب پی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا توجہ رکھنا، لڑکے تو لڑکے، آج ہم نے لڑکیاں بھی اتنی آزاد چھوڑ دی ہیں، آج ہم نے لڑکیاں بھی اتنی آوارہ بنا دی ہیں، آج ہم نے لڑکیاں بھی اتنی ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے۔ اگر اسکول جا رہی ہے تو اس باپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری بیٹی اسکول جا رہی ہے، یا موبائل ساتھ میں لے کر کے کسی لڑکے کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، اس باپ کو یہ پتا نہیں ہے میری بیٹی اسکول جا رہی ہے، یا چاؤمین یا موموز یا بتاشے یا یہ تمام چیزیں کھانے کے لیے مارکیٹ سے باہر جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ آزادی پھیل جاتی ہے۔ آج نہ جانے کتنی، ابھی میں 3 روز پہلے رانچی میں تھا، وہاں میری تقریر تھی، مگر سنو جب میں نے یہ بیان کیا تو مجھے وہاں پتا چلا وہاں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے ساتھ میں بھاگ جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنی غیر مسلم لڑکیاں ایسی ہیں، مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی غیر مسلم لڑکیاں بھی ایسی ہیں جو مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو جاتی ہیں۔ یہاں اس اسٹیج سے یہ بھی تمہیں پیغام دے دوں، اسلام تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی عزت کرو، کسی غیر مسلم بیٹی کی عزت لوٹو، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کسی غیر کی بہن بیٹی کی عزت نیلام کرو، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ ارے اسلام یہ کہتا ہے اگر تو نبی کا غلام ہے تو تو جب نکلے تو تیری نظریں نیچے کو ہونی چاہیے، جب تو نکلے تو تیرے چلنے کی ادا نبی
नबी नबी हो, तेरे खाने की अदा नबी नबी हो, तेरे पीने की अदा नबी नबी हो, तेरी हर हर धड़कन नबी हो। तुमने पूछा सुबह से शाम तक हमारी बेटी कहाँ चली गई थी, तुमने पूछा स्कूल इतने टाइम की छुट्टियां कहाँ चली गई थी, तुमने पूछा हमारी बेटी कहाँ थी, हमारी बेटी सहेलियों के नाम से। और जरा बता दूं, अभी ये जनवरी गुजरी है, अल्लाह अल्लाह मुसलमानों शर्म आनी चाहिए, डूब जाना चाहिए। एक मर्तबा गिरबान में झांक के देखो, अभी 26 जनवरी निकली है, स्कूलों में मुसलमान की बेटियां 15-15 साल की बच्चियां डांस करने के लिए जाती हैं, 18-18 साल की बच्चियां, मुसलमानों की बच्ची नाचने के लिए 26 जनवरी को जा रही है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे घर में तो सैयदा फातिमा की कनीज होनी चाहिए थी, ये नचनिया कहां से आ गई, ये नाचने वाली कहां से आ गई? इसलिए इसकी मां ने इस पे तवज्जो नहीं दी है, इसके बाप ने इस पे तवज्जो नहीं दी है, इसके भाई ने इस पे तवज्जो नहीं दी है, इसके हाथ में मोबाइल थमा दिया है। मोबाइल दे करके अब बाप ये नहीं देखता मेरी बेटी किससे बात कर रही है, भाई ये नहीं देखता मेरी बहन किससे बात कर रही है। अरे तुम्हें मालूम है आज के दौर में मैं गारंटेड बोलता हूं, इसलिए मैं भी आपकी दुआ से, अल्लाह का फजल है, गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से मौला मुझे बचाए। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पे जाता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें 18-15 साल की बच्ची से 22 साल की बच्ची हो जाए तो उसकी मोबाइल पे किसी की सेटिंग ना हो, वो मोबाइल पे चैटिंग ना करती हो, मोबाइल पे बातें ना करती हो। इल्ला माशाअल्लाह, मैंने बड़े बड़े अच्छे घराने की बच्चियों के बारे में भी ये बताए दिए देता हूं, जो किसी से सेटिंग या चैटिंग ना होती हो, ये बाप को भी पता है, ये माँ को भी पता है, सब जानबूझ करके अंधे बने हैं, जानबूझ करके अनजान बने हैं। बनते रहो, एक दिन वो आगा। और दूसरी बात और बताए देता हूं, अगर शहर के शहर में कहीं पे अगर रिश्ता हो जाता है तो तुम्हें मालूम है शादी होगी 1 साल के बाद, रिश्ता आज हो गया तो वो लड़का किसी के जरिए उसे मोबाइल भिजवा देता है, या भाई उसे मोबाइल दे देता है, या कोई भी उसे मोबाइल दे देता है और कहता है ले अब तू मुझसे बात करती रहना। इस भाई को पता है मेरी बहन अपने उससे बात कर रही है जिससे इसका रिश्ता हो चुका है, मेरी इस माँ को पता है कि मेरी बेटी उससे बात कर रही है जिससे रिश्ता हो चुका है, इस बाप को पता है मेरी बेटी उससे बात कर रही है जिससे उसका रिश्ता हो चुका है। नमाजें पढ़ने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम बताने वालों, तुम जरा पूछो, किसी मुफ्ती से पूछो, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी उसका निकाह नहीं हुआ है, उस लड़के से भी बात करना हराम है, बात करना हराम है। अरे तुम्हें क्या पता है 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती है, डॉक्टरों के पास जा रही है, डॉक्टरों के चेकअप पे चेकअप लिख देता है, 50-60 हजार के चेकअप हो गए, डॉक्टर ने कहा इसे कुछ बात नहीं है, मियाँ के पास उसके माँ बाप जा रहे हैं, अगर मियाँ ठीक है तो वो या मियाँ ठीक है तो वो उसको देखने के बाद बता देता है, इल्मुल आदात के जरिए, वो हिसाब किताब के जरिए बता देता है इस पे कुछ नहीं है। और मियाँ अगर गड़बड़ है तो कहता 5000 का उतारा होगा, 2000 का उतारा होगा, अब ये मियाँ तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं डंके की चोट पे कह करके जा रहा हूँ, इसे ना तो कोई हवा है ना तो कोई जिन है, लेकिन तबीयत फिर भी खराब है, खाना नहीं खा रही, एक तरफ कोने में पड़ी है, एक तरफ सूखती चली जा रही है, दवा असर नहीं कर रही है, डॉक्टर भी परेशान है, अच्छे अच्छे मियाँ भी परेशान है। मामला क्या है? मामला ये है डिप्रेशन का शिकार है। बताऊं कैसे? इसलिए वो लड़का उससे बात करता है, बात करते करते कहता है तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तुम्हारे कपड़े बड़े खूबसूरत हैं, और कहता है कि मैं चांद सितारे तेरी गोद में लाके रख दूंगा। इस लंगड़े से छत पे चढ़ा नहीं जाता, चांद सितारे लाके रखेगा कि सितारे तेरी गोद में लाके रखूंगा, चांद तेरी गोद में ला करके रखूंगा। मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लेना। अब वो कहता जरा कमरे में जाओ, कमरा बंद हो जाता है, कमरा लॉक हो जाता है। अब कमरे में वो अकेली बात कर रही है, उधर माँ से पूछा कमरे में कौन है, कहा बेटी है उसी से बात कर रही है। भाई से पूछा कौन है, कहा भाई वो बहन है उसी से बात कर रही है। माँ से पूछा, सब बता रहे हैं, सब खुश है, कोई एतराज नहीं समझ रहे हैं। अब वो लड़का कहता है जरा सर से दुपट्टा हटाओ, तुम्हारे बाल बड़े
खूबसूरत लग रहे हैं। वो इठला इठला के दुपट्टा हटा रही है, कहता है जरा दुपट्टा और नीचे को सरकाओ। वो वीडियो बनाता है, वहां से क्लिप बन रही है। यहाँ तक के प्यार में इतने गुम हो जाते हैं, बल्कि प्यार मत कहो, शैतानियत में इतने गुम हो जाते हैं, वो अपने कपड़े हटा के जिस्म दिखाती है, वो अपना जिस्म दिखा रहा है। यहाँ तक के लड़की की क्लिप बन जाती है। अब किसी वजह से कोई ना कोई बुराई हो करके वो रिश्ता छूट जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है, वो रिश्ता खत्म हो गया। अब वो लड़की को टॉर्चर किया जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। देख तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना तू वहां मुझसे मिलने आ जा। अब मजारों पे मिलने जा रही है, अब उर्सों में मिलने जा रही है, अब बाजारों में मिलने जा रही है, अब मार्केटों में मिलने जा रही है कि फुला जगह में आ जा, फुला जगह आ जा, वरना मैं ये तेरी वायरल कर दूंगा। बेचारी मरती क्या नहीं करती, यहाँ तक के उसकी माँ को पता नहीं चली गई। बेचारी सोच रही है ये खत्म हो जाए, मगर बास कमीना लड़का ऐसा है, क्या इसके घर में बहन नहीं है, क्या इसके घर में माँ नहीं है? अरे दूसरे की बहन बेटी से खिलवाड़ करोगे ना तो तुम्हारे आगे उतरेगा। तुम्हारी बेटी भी एक दिन ऐसे ही होगी, तुम्हारी बहन भी एक दिन ऐसे ही होगी, वरना तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये इस्लाह माशरा है। बड़ी अंदर की बात बताने जा रहा हूँ जो लोग बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। वो लड़की डिप्रेशन का शिकार है, यहाँ तक के बात लड़की गलत इस्तेमाल हो जाती है, वो उसको दिखा करके उसे गलत इस्तेमाल कर लेता है। फिर वो लड़की, तुमने नहीं देखा कितनी लड़कियां पंखे में लटक के मर जाती है, कितनी लड़कियां अब घर वालों को इज्जत बचाने की खातिर कहा इस पे जिन था, इस पे भूत था, इस पे चुड़ैल थी, उसने लटका के मार दिया है। इसका तवाजुन दिमाग का खराब था, कुछ नहीं था। तुम्हारा कल्चर खराब है, तुम्हारा माहौल खराब है, तुम्हारा माशरा में आग लग गई है, आग। अब जरा हदीस सुनो, तुम्हें हदीस का बहुत शौक है, हदीस सुनो, तुम्हारे मुंह को कलेजा आ जाएगा। जन्नत में जाने वालों सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आकुल वालिदैहि व तय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई आलिम जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई माई कलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी रोक दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई कलाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है? एक को टारगेट बनाता हूँ, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों से दूसरे लड़कों से सेटिंग कर रही है, चैटिंग कर रही है, उनके साथ भाग जाती है, जिस्म से खिलवाड़ करती है, बेहया हो गई है। नबी फरमाते